Hello students, today we are going to continue polynomials for class 9. In the previous video we have studied about remainder theorem. Now in this video I am going to tell you about factor theorem and factorization and the other algebraic identities which you will use in factorization. So let's start with factor theorem. The factor theorem is in two parts. First we will consider any polynomial px and let's say whose degree n is greater than equal to 1. This means that this particular polynomial px has a degree of equal to 1 or greater than 1. It will be never be equal to 0. So now a be any real number then by factor theorem x minus a is a factor of px if pa equal to 0, and the second part of factor theorem you get that pa will be equal to 0 if x minus a is a factor of px. कि अगर pa equal to 0 है तो x minus a फैक्टर होगा px का, और अगर x minus a फैक्टर है px का तो pa equal to 0 होगा. आपको याद होगा रिमाइंडर थ्योरम में I told you that px is equals to x minus a qx plus rx. This was question, this was a dividend, this was a division, and this was remainder. If remainder is equal to 0, then it is completely satisfying that x minus a is a factor of px. क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 है तो x minus a फैक्टर ही होगा और qx भी फैक्टर होगा. In for instance, if I am writing 6 equal to 2 multiply 3 plus 0, so that means 2 and 3 both are factors of 6. So you will use factor theorem when you have to check whether a given polynomial x minus a is a factor of another given polynomial px, or if you are given any real number a, if you have to check whether it is a factor or not, you will simply calculate pa. If it comes out to be equal to 0, then x minus a is the factor, otherwise not. Now taking this in consideration, let's come to example number 14. Let's come to example number 11. You have to examine whether x plus 2 is a factor of polynomial x cube plus 3x square plus 5x plus 6. So in this particular question you have to check whether x plus 2 is a factor of this polynomial or not. So in the factor theorem you studied that x minus a is a factor of px. कि x minus a factor होता है px का अगर pa equal to 0 हो. तो what you will do, you will compare x plus 2 by x minus a. On comparing you will get a equal to minus 2. Now you have to check whether pa equal to 0 or not. For this you will calculate p minus 2, which will be equal to minus 2 cube plus 3 multiply minus 2 square plus 5 multiply minus 2 plus 6. You will get minus 8 plus 12 minus 10 plus 6. You will get minus 18 plus 18 which is equal to 0. So p minus 2 equal to 0. अब आप अगर इस फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो x माइनस ए फैक्टर है अगर pa इक्वल टू 0. तो इसमें अगर वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, p माइनस 2 इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0, देन yes x plus 2 is the factor of this particular polynomial. Now let's come to another example. Example number 12. You have to find the value of k. If x minus 1 is a factor of x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. In this particular question, you are already given that yes, x minus a is the factor of this particular polynomial. You have to simply calculate the value of k. For this, for calculating the value of k, you must get an equation जिसमें आपको सिर्फ एक ही unknown हो, वो हो k. To get that equation, you know कि अगर कोई भी polynomial factor है तो हमेशा p क्या होगा आपका इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या लिखा हुआ सेकंड स्टेटमेंट में कि if x minus a is a factor of px then pa equal to 0. तो आप यही कंडीशन यहाँ पर यूज करेंगे. Comparing x minus 1 by x minus a, you get a equal to 1. तो you will use this that 4 1 cube. You will use p1 equal to 0 condition. तो 4 1 cube plus 3 multiply 1 square
-4 multiply 1 plus k equal to 0. On calculating this, you will get 4 plus 3 minus 4 plus k equal to 0. On solving, you get k equal to -3. In both the question, in the first one you use the first statement, and in this question you are using the second statement. अब बात ये आती है क्वेश्चन कि अब आपने इन दोनों क्वेश्चन में तो सिंपली बस ये किया कि आपको चेक करना था कि क्या x माइनस ए फैक्टर है, तो आपने सिंपली उसको सॉल्व करके चेक कर लिया पीए को कैलकुलेट करके. इस क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, गिवन था फैक्टर है तो आपने पीए को इक्वल टू 0 पुट कर लिया. व्हाट अबाउट कि अगर आपको फैक्टर खुद ही कैलकुलेट करने हैं, तो फैक्टर कैलकुलेट करने के आपके दो तरीके होते हैं. या तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे कि हमने शुरू में पढ़ा है कि अगर कोई रियल नंबर है a और वो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल है px, देन x माइनस ए फैक्टर होता है हमेशा. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. पी इक्वल टू 0 हमने पहले पढ़ लिया और एक्स माइनस ए फैक्टर हमने यहाँ पढ़ लिया. तो या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से वो नंबर ए फाइंड करेंगे जो कि आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 दे दे. बट ऐसा हमेशा तो पॉसिबल नहीं है. कभी तो आपको एकदम हो सकता है कि एक आधे नंबर के बाद वो नंबर मिल जाए जिससे आपको पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाए. बट अगर नहीं मिल पा रहा है तो यू शुड हैव अ फॉर श्योर मेथड जिससे आप फैक्टर्स कैलकुलेट कर सके. दैट पर्टिकुलर मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो अब ये सब हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ फैक्टराइजेशन. अब आप फैक्टराइजेशन दो तरीकों से कर सकते हो. या तो आप करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, या फिर आप करो यूजिंग आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज मैं आपको इस टॉपिक के बाद बताऊंगी कुछ क्वेश्चंस के बाद. लेट्स फर्स्ट टेक द एग्जांपल ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की बात करें, हम जो बेसिक फॉर्म होती है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. व्हाई आई एम नॉट टेकिंग लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में तो डिग्री 1 है, तो डायरेक्टली अगर मैं लिख रही हूँ x प्लस 1, तो x प्लस 1 तो खुद ही एक फैक्टर की तरह यही हो गया. तो लेट्स वी आर स्टार्टिंग विद द डिग्री 2, दैट इज विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो अगर आई एम सेइंग कि इसके दो फैक्टर्स हैं, एक है px प्लस q और दूसरा फैक्टर है rx प्लस s. आपको याद होगा हमने यहाँ लिखा था कि अगर 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 है और रिमाइंडर में 0 आ रहा है और ये दोनों फैक्टर्स है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 6 लिख सकते हो. सिमिलरली यूजिंग दिस यू कैन राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स px प्लस q मल्टीप्लाई rx प्लस s. On multiplying you will get pr x square plus psx plus qrx plus qs. On taking out common term x, you will get ps plus qr x plus qs. अगर आप इसे कंपेयर करोगे इस बेसिक फॉर्म से, तो you will get a equal to pr, b equal to ps plus qr and c equal to qs. अब स्प्लिटिंग द टर्म मिडिल टर्म में बात सारी ये होती है कि आपके जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होता है यानी कि b, वो जिन दो नंबर का सम होगा उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट आएगा आपका AC. यानी कि आप b को अगर स्प्लिट कर रहे हो लेट्स से x1 और x2 में, तो इनका सम तो इक्वल टू होगा b और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ a एंड c. अब अगर आप इसमें से चेक करना चाहते हो तो आपका b क्या आया, ps प्लस qr. तो यानी कि आपका इसके अकॉर्डिंग AC क्या आना चाहिए, ps मल्टीप्लाई qr. और आपको इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन पे a मिला है pr और c मिला है qs. तो अगर मैं a इंटू सी कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा pr मल्टीप्लाई qs. अब ये pqrs है ना, आप चाहे इसे pr मल्टीप्लाई qs लिखते हैं और चाहे ps मल्टीप्लाई qr लिखते हैं, दोनों सिचुएशन में आपको मिलेगा तो pqrs. तो यही यहाँ पर चीज सेटिस्फाई हो गई कि आपको स्प्लिटिंग हमेशा ऐसी करनी है कि आप मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करोगे, ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करोगे जिनका सम तो हो वो मिडिल टर्म और प्रोडक्ट हो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म c. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस. In this example, you are given the polynomial 6x square plus 17x plus 5. So you have to break 17 in such a way that the sum of these numbers, let's say a1 plus a2 is equal to 17 and a1 multiply a2 is equals to
6 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 30। तो आपको इनको ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है 30 हम लिख सकते हैं 30 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2 और 15 इंटू 2 का सम 17 भी होता है। तो आपके जो नंबर्स आएंगे स्प्लिट करने के लिए वो आएंगे 15 और 2। अब आप इसे कैसे लिखोगे, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। मैंने 17 को स्प्लिट करा है तो आप 17 को ही स्प्लिट करके दिखाओगे, 6x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। अब आप अगर इसमें सॉल्व करते हो तो आप क्या लिखोगे, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अगर अब मैं यहाँ कॉमन लेना शुरू करूँ, मैं दो टर्म को यूज कर रही हूँ कॉमन कैलकुलेट करने के लिए, तो आपका यहाँ पर कॉमन आएगा 3x। तो आप 3x को किससे मल्टीप्लाई करो दैट यू गेट 2x स्क्वायर, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x से, तो यू विल गेट ऑन मल्टीप्लाइंग 6x स्क्वायर। और 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि मुझे 15x मिला, तो आई मल्टीप्लाई इट बाय 5। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, बट जस्ट टू गेट दैट ब्रैकेट थिंग मैं यहाँ पे 1 कॉमन ले सकती हूँ। 1 कॉमन लेने का रीजन ये है ताकि आपको जो दो ब्रैकेट्स मिले उन दोनों में सेम टर्म्स मिले। आपको यहाँ पर भी 2x प्लस 5 मिला और यहाँ पर भी 2x प्लस 5 मिला। जैसे आप किसी दो टर्म में कॉमन लेते हो, इसमें आप कंप्लीट ब्रैकेट को कॉमन ले सकते हो। अगर मैंने 2x प्लस 5 पूरा कॉमन ले लिया तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, 2x प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करा हुआ, 3x से, और यहाँ पर 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया है 1 से। तो अब आपके ये दो फैक्टर्स आ गए इसके लिए। अब ये तो हो गया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। व्हाट इफ आई एम कंसीडरिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे पास कोई ऐसा रियल नंबर होना चाहिए a जिसकी वैल्यू p इक्वल टू 0 आए, जिससे मैं कह सकूं कि x माइनस a उसका फैक्टर है। अगर हम उसको सिचुएशन को कंसीडर करें, in maths for solving a particular question you have many types of ways, but the best one is कि आपके हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका कोई मेथड सूटेबल हो और अनदर क्वेश्चन में वही जो सूटेबल मेथड था वो उसके लिए टिपिकल हो जाए। तो इसीलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स होते हैं। आपको दोनों तीनों पता होने चाहिए, जितने भी मेथड्स हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग क्या सही लग रहा है उसमें यूज करना। अगर मुझे फैक्टर थ्योरम को यूज करना है, आप हमेशा याद रखें कि अगर आपको फैक्टर थ्योरम अप्लाई करनी है, आपका फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट काम होगा कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर वाली, आप उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए मुझे यहाँ 6 कॉमन लेना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा ब्रैकेट में, x स्क्वायर प्लस 17/6, क्योंकि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे 17 मिल जाएगा, एंड प्लस 5/6। तो बेसिकली अब मुझे यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसे पुट करने पर मेरा जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 ये मेरा 0 के इक्वल आ जाए। तो अगर मैं इसमें स्प्लिटिंग करना चाहूँ तो मैं अब मिडिल वाले टर्म की क्या करूंगी, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 6। मैंने क्योंकि 6 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई बाय x माइनस a मल्टीप्लाई बाय x माइनस b। यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि x माइनस a और x माइनस b इनके फैक्टर्स हैं, किसके, x स्क्वायर प्लस 17/6 प्लस 5/6 के, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंप्लीट पॉलिनोमियल में से 6 कॉमन ले लिया। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ मुझे क्या मिलेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस bx माइनस ax एंड प्लस ab। अगर आप इसे फर्दर इसमें से x कॉमन आउट लेते हैं मेरे टर्म से तो आपको क्या मिलेगा, लेट्स से आपको मिलेगा प्लस का आप ले लो तो माइनस b माइनस ax एंड प्लस ab। तो यानी कि आपका जो ab है वो आपका ab इक्वल टू है 5/6। आपको दो नंबर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट आपका क्या है 5/6। तो अब वो नंबर आपके क्या हो सकते हैं, या तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 को बाय 5/3 तो भी आपको 5/6 मिल जाएगा, या मैं मल्टीप्लाई कर दूं -1/2 बाय -5/3 तो भी आपको 5/6 मिल जाएगा, या मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5/2 बाय 1/3 तो भी आपको 5/6 मिल जाएगा, या मैं मल्टीप्लाई कर दूं -5/2 -1/3 तो भी आपको 5/6 मिल जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें इन चारों सिचुएशन को तो आपको फैक्टर्स क्या क्या मिले, या तो अगर आप फैक्टर ले लो 1/2 तो आप दूसरा फैक्टर लोगे 5/3, क्योंकि आपको दो वैल्यूज चाहिए, एक तो a और एक b।
अगर आप a कंसिडर कर रहे हो -1/2 तो आप b कंसिडर करोगे -5/3। सिमिलरली अगर आप a कंसिडर कर रहे हो 5/2 तो b होगा 1/3। अगर आप a ले रहे हो -5/2 तो b होगा -1/3। और हाँ, टू बी वेरी ट्रू, जरूरी नहीं है कि मैं a 1/2 को लूँ और b 5/3 को। आपका मन है आप a 5/3 को लो, b 1/2 को लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आप a b लिखो चाहे b a लिखो, बात तो सेम रहती है। अब हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि किस वैल्यू को पुट करने पर मेरा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ रहा है। तो लेट्स पुट 1/2 फर्स्ट। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में 1/2 को पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 स्क्वायर प्लस 17/6 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 5/6। अच्छा, पहली बात तो आप इसे सॉल्व करके चेक करो। अगर आप सॉल्व नहीं भी करते, आपको दिख रहा है सारे टर्म्स प्लस में है, कोई भी नेगेटिव में है ही नहीं, तो ये कभी भी इक्वल टू 0 होगा ही नहीं। तो 1/2 वाला केस तो आपका हट गया, क्योंकि जब 1/2 फैक्टर है नहीं तो 5/3 को लेके करना क्या है, क्योंकि आपको तो दो नंबर चाहिए ना यहाँ a और b। तो पहला वाला केस तो आपका हट गया। नाउ लेट्स कम टू -1/3। अब हम ले रहे हैं -1/3 का केस। मैंने -1/2 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं -1/2 का लूंगी तब भी यू विल ऑब्जर्व कि वो आपका इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके प्लस के टर्म्स तो ज्यादा हो जाएंगे और नेगेटिव टर्म आपका सिर्फ एक ही बचेगा, 17/6 मल्टीप्लाई -1/2। वो आपका इक्वल टू 0 सॉल्व कर नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप नीचे क्वेरी में लिखेंगे कि आपको ये कंफ्यूजन है। मैं इसको कट टू द शॉर्ट कैलकुलेट कर दूं, p -1/3। अगर आप उसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा -1/3 स्क्वायर प्लस 17/6 मल्टीप्लाई -1/3 एंड प्लस 5/6। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। तो आपको यहाँ मिलेगा 1/9 प्लस माइनस 17/18 प्लस 5/6। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप 18 ले सकते हैं। 9 to 18 यहाँ पर ऑलरेडी है तो 17, 6 3 18, तो 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15, 15 प्लस 2 इज 17 minus 17/18 which is equal to 0/18, that is equal to 0। यानी कि अब आपका p -1/3 equal to 0 आ गया। मैं यहाँ पर इसे इरेज कर दूं ताकि मैं आपको दोनों मेथड कंपेयर करके बता सकूं। आपका यहाँ सॉल्व करने पर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए p -1/3 equal to 0 आ गया। अब आपको याद होगा कि जब मैंने -1/3 लिया था, अगर वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो आप कह सकते हो कि x माइनस -1/3 विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, यानी कि x + 3 इसका फैक्टर, x + 1/3 इसका फैक्टर होगा। तो अब आप इसे कैसे ब्रेक करोगे, और आपको याद होगा -1/3 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, -5/2। यानी कि अगर एक फैक्टर -1 आपका जो नंबर है जो 0 है वो -1/3 है, तो दूसरी 0 आपकी क्या होगी, -5/2। एक फैक्टर x + 1/3 है, दूसरा फैक्टर आएगा आपका x + 5/2। ऐसे ही सॉल्व करने के बाद तो आप लिख सकते हो इसको 6 मल्टीप्लाई x + 1/3 मल्टीप्लाई x + 5/2। आप जब सॉल्व करोगे तो आप नेचुरली इसी पे आकर रुकोगे, क्योंकि आपको इसे मल्टीप्लाई भी करना है। जब आप यहाँ एलसीएम लोगे 3 तो ये कैंसिल करके आपको 2 देगा, तो आपको यहाँ पर भी 2x + 5 मिल जाएगा एलसीएम लेने के बाद पूरा, और यहाँ पर भी आपको सॉल्व करने का 3x + 1 मिल जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपको वापस से 3x + 1 और 2x + 5 ही फैक्टर्स देगा। आप इस क्वेश्चन की अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये मेथड वाज फार इजियर देन दिस वन, क्योंकि फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गए। नाउ व्हाट अबाउट कि अगर कोई अलग तरह का क्वेश्चन है, लेट्स टेक अ सिंगल क्वेश्चन फॉर अनदर क्वेश्चन, उसके बाद आई एंड ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल सॉल्व द एक्सरसाइज। जस्ट लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अगर आपको करना है y² - 5y + 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया गया कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज करनी है। फैक्टर थ्योरम यूज करनी है तो यानी कि y² - 5y + 6 मस्ट बी इक्वल टू सम लेट्स से x - a मल्टीप्लाई x - b। आपको जरूरी नहीं है कि आप इसे x - a मल्टीप्लाई x - b लिखें, आप इसे x + a मल्टीप्लाई x + b भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट क्योंकि हम हमेशा से ये मान के चलते हैं कि a कोई रियल नंबर है, अगर वो 0 है तो x - a फैक्टर है, इसलिए आई कंसीडर टेकिंग x - a एंड x - b। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x²
प्लस में माइनस ए माइनस बी कॉमन एक्स एन प्लस ए बी, यानी कि इसमें आपका ए बी इक्वल टू है 6। वापस से पैटर्न वही आ गया, या तो 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 फैक्टर होंगे, या -2 -3 फैक्टर होंगे, या आपके -1 -6 होंगे फैक्टर, या आपके 1 और 6 होंगे फैक्टर, कुछ भी हो सकते हैं। अब आप वापस से अपना हिडन टाइम मेथड लगाओगे। लेट्स कैलकुलेट P2 फर्स्ट। आपने कैलकुलेट करो तो क्या मिला, 2 स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, यहाँ से आपको मिलेगा 4 -10 प्लस 6। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप में आ गया इक्वल टू 0, तो यानी कि 2 इज दैट पर्टिकुलर 0, तो यानी कि x - 2 इज अ फैक्टर। अगर पहला फैक्टर आपने पहला नंबर 2 लिया तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली 3 होगा, मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर सकते हो। तो यानी कि y² - 5y + 6 इक्वल टू आपका क्या होगा, x - 2 और x - अब अगर मैं यहाँ स्प्लिटिंग लगाने बैठूं तो दैट विल बी अ वेस्ट, क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली इतना इजीली यहाँ पर मिल पा रहा है a b = 6 पुट करने पर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। इस तरह के आपके क्वेश्चंस हो गए। अगर आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तो बात हो गई क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक में आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर आप अनदर एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर 15, उसमें आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ -23x² प्लस 142x एंड -120। अब इसमें तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहाँ से लगेगी, x³ की टर्म है पहली, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के लिए आप या तो पहले पूरा अलग को ब्रैकेट करोगे, उसके लिए स्प्लिट करोगे, फिर x³ करोगे, दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग मेथड। आप क्या करोगे, पहले आप हिट एंड ट्राई मेथड से, आई एम मेंशनिंग इट अगेन, हिट एंड ट्राई, इस मेथड इस तरीके से आप नहीं कैलकुलेट करोगे। बाय हिट एंड ट्राई यू विल फर्स्ट कैलकुलेट अ नंबर जिससे आपको पुट करने पर ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 मिले। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली कि जब भी आपके पास ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, स्टार्ट टेकिंग विद 1 -1 2 -2 3 -3, आपको इन्हीं कुछ नंबर्स में से कोई एक 0 मिल जाएगा डेफिनेटली। जैसे फॉर दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 1³ -23 1² प्लस 142 1 मल्टीप्लाइंग एंड -1, तो आपको क्या मिलेगा, 1 -23 प्लस 142 -120। अगर मैं नेगेटिव टर्म सारी ऐड कर दो पॉजिटिव, तो मुझे मिला 143 -143, आ गया इक्वल टू 0 1 0। तो यानी कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अब आप आगे क्या करोगे, यू विल डिवाइड दिस कंप्लीट पॉलिनोमियल बाय x - 1, और आप जब डिवाइड कर दोगे तो यू विल ऑब्जर्व द क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर आप क्वाड्रेटिक को किसी भी तरीके से स्प्लिट करो, चाहे तो आप इस मिडिल टर्म से करो, चाहे फैक्टराइजेशन थ्योरम से करो, दैट इज ऑल अप टू यू। So this was all with this video. You have to solve exercise 2.4 using these basics. If you have any sort of queries, you can drop down in the comment section simply by mentioning the question number, and I'll solve it in the another video. Thank you.